Good morning, children. A very happy new year to all of you. Welcome to your English class. Today, we are going to read chapter 11 from your literature books, The Hornbill Festival. The Hornbill Festival of Nagaland can be considered a window to Nagaland. It is an annual event. It brings together the tribes of Nagaland to display their culture and traditions. So the Hornbill Festival of Nagaland is an annual event, means it is an yearly event. It happens every year. It brings together the tribes of Nagaland. Tribes means Kabile. You must have read about the tribes and tribal people in your EVS books. Nagaland to display their culture and traditions. Display means to show their culture and traditions. The scenic state of Nagaland is home to many tribes and they each celebrate different festivals. Scenic means very beautiful. Beautiful state of Nagaland is home to many tribes. बहुत सारे ट्राइब्स वहाँ पे रहते हैं एंड दे ईच सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स और सबके अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द कुकीज़ इज़ अ ट्राइब celebrate Mimkut in January, the Konyak celebrate Auleng in April, and the Aus celebrate Motsu in May. So Cookies, Konyaks and Aus. These are tribes and Mimkut, Auleng and Motsu are the festivals which they celebrate. However, the largest and most important festival is the Hornbill Festival. सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? Hornbill Festival. And what a fete it is. Fete is public function, open to all. While most of the other festivals focus on harvests or seasons, the Hornbill Festival is specially meant to promote and protect the tribal culture of Nagaland. So means beta ke other festivals like we celebrate many festivals which are based on harvests like Baisakhi in Punjab, Onam in Kerala, etc. or seasons like Basant that is celebrated in spring season. The Hornbill Festival is specially meant to promote. To promote means to encourage and protect or save the tribal culture of Nagaland. The festival is named after the Great Indian Hornbill. Great Indian Hornbill is a bird, a large colorful bird which is considered a symbol of bravery in the folk culture of most Naga tribes. नागा ट्राइब्स जो हैं वो इसको एक ब्रेवरी का सिंबल, बहादुरी का सिंबल मानते हैं. इट्स क्राई, जो इसका साउंड होता है हॉर्नबिल का, दैट इज कॉल्ड अ क्राई एंड इट साउंड्स लाइक अ रॉर, लाइक अ लायंस रॉर, सजेस्ट स्ट्रेंथ एंड करेज. उससे क्या लगता है कि बहुत स्ट्रेंथ और बहुत करेज महसूस होती है. फॉर दीज रीजन्स द हॉर्नबिल रिप्रेजेंट्स द नागा वॉरियर ट्रेडिशन. वॉरियर मीन्स लाइक सोल्जर्स, लड़ाकू, तो उनको ये रिप्रेजेंट करता है. On the days of the festival, the 16 officially recognized tribes of Nagaland display their folk music, dance, food, sports, and other performances. As a result, each tribe enjoys its own customs and also gets to understand the traditions of other tribes. If you visit Nagaland at this time, you will be able to experience the unique culture and customs of Nagaland. So there are 16 officially recognized tribes of Nagaland. There is a list of these 16 officially recognized tribes by the government of Nagaland. They show their folk music. उनका अलग अलग तरह का म्यूज़िक होता है, डांस होता है, वो सब कुछ वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं. और इससे क्या होता है कि हर एक ट्राइब अपने खुद के कस्टम्स को तो एंजॉय करता ही है, साथ में जो दूसरे ट्राइब्स हैं उनके ट्रेडिशंस को भी समझने में उनको हेल्प मिलती है. इफ़ यू विज़िट, अगर इस वक्त पे हम नागालैंड जाते हैं, देन वी कैन एक्सपीरियंस द यूनिक कल्चर एंड कस्टम्स ऑफ नागालैंड. हमें बहुत कुछ समझने में हेल्प मिलती है. द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड.
It begins every year on 1 December, which is also the day when Nagaland was declared an official state of India. Earlier, the festival would last for a week, but soon it became so popular that it was extended by 3 more days. तो ये बेटा जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है इसको गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ऑर्गेनाइज करवाते हैं और एवरी ईयर इट बिगिंस ऑन 1 दिसंबर, जिस दिन नागालैंड एक स्टेट बना था, इंडिया की ऑफिशियल स्टेट बना था, उसी दिन ये वाला फेस्टिवल स्टार्ट होता है। पहले ये वाला जो फेस्टिवल होता था इट वुड लास्ट फॉर अ वीक, लेकिन ये धीरे धीरे इतना पॉपुलर हो गया कि इसको एक्सटेंड करना पड़ा, 3 और डेज़ के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो अभी कितने दिनों के लिए चलता है? फॉर 10 डेज। ओके, द नागा हेरिटेज विलेज is at the heart of the festivities. Built close to Kohima, the capital of Nagaland, it includes a cluster of 16 huts and morangs, one for each of the 16 tribes of Nagaland. Each of these spaces reflects the architecture, design, and colors of its tribe. Visitors are served traditional delicacies from the cuisine of each tribe in the different morangs. तो क्या होता है वहाँ पे? नागा हेरिटेज विलेज में इसको सेलिब्रेट करते हैं। एक विलेज बनाया हुआ है नियर कोहिमा। कोहिमा क्या है? कैपिटल ऑफ नागालैंड। और वहाँ पे एक क्लस्टर है ऑफ 16 हट्स एंड मोरंग्स, राइट? क्लस्टर मीन्स ग्रुप, ग्रुप है मीन्स 16 हट्स बनी हुई हैं, 16 मोरंग्स बने हुए हैं। मोरंग्स आर डॉर्मिट्रीज, बिग हॉल्स, ठीक है, वन फॉर ईच ऑफ द 16 ट्राइब्स ऑफ नागालैंड। और सब में जिस भी आप हट एंड मोरंग में जाओगे वहाँ पे आपको उस पर्टिकुलर ट्राइब का आर्किटेक्चर, डिज़ाइन और कलर्स देखने को मिलते हैं। और साथ में क्या होता है, जो भी विजिटर्स वहाँ पे जाते हैं लोकल डेलिकेसीज मिलती हैं फ्रॉम द क्विजिन, जो उनका खाने पीने का ढंग है, जो वो कुक करते हैं, वो सारा कुछ वो सर्व करते हैं। Apart from performances, ceremonies, and sports, several art forms and handicrafts are on display. Traditional paintings, sculptures, and wood carvings are exhibited alongside stalls of local flowers, traditional herbal medicines, and food preparations. तो वहाँ पे क्या होता है, परफॉर्मेंसेस के बिना अलावा भी सेरेमनीज होती हैं, गेम्स होती हैं, स्पोर्ट्स होती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स होते हैं, आर्ट फॉर्म्स होते हैं, सब कुछ वहाँ पे शो किया हुआ होता है। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, वुड कार्विंग्स, ठीक है, और लोकल फ्लावर्स, वहाँ के जो अलग टाइप के फ्लावर्स होते हैं, हर्बल मेडिसिन्स होती हैं, फूड प्रेपरेशंस होती हैं, वो सारा कुछ वहाँ पे डिस्प्ले करा हुआ होता है। Visitors can look forward to events like नागा रेसलिंग एंड आर्चरी। इवेंट्स भी होते हैं, रेसलिंग के इवेंट्स होते हैं, आर्चरी जो बो एंड एरो के साथ होता है वो भी वहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाए हुए होते हैं। अदर पॉपुलर अट्रैक्शंस आर वॉरियर ड्रम शोज, कलरफुल वॉरियर हेड गियर, वॉर डांसेस एंड वॉर क्राइज। और भी क्या कुछ होता है वहाँ पे, वॉरियर जो वो लड़ाई के टाइम पे उनके ड्रम वो बीट करते हैं, वो वाले ड्रम्स के शोज़ होते हैं। हेड गियर जो हेड पे पहनते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, कलरफुल होते हैं, वो भी वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। वॉर डांसेस होते हैं, वॉर क्राइज जो वो आवाज़ें निकालते हैं वो भी वहाँ पे डिस्प्ले करते हैं। ये अट्रैक्शंस होती हैं हॉर्नबिल फेस्टिवल की सॉरी। द फेस्टिवल ऑल्सो इंक्लूड्स द कोहिमा नाइट बाज़ार। Kohima Night Bazaar is a big attraction during this festival where the town bustles with energy as the sun goes down. As the sun goes down means जब शाम हो जाती है, जब रात होने लगती है तो कोहिमा नाइट बाज़ार स्टार्ट होता है and town bustles with energy because people come out of their spaces and start enjoying the festival. कैसे एंजॉय करते हैं? द स्ट्रीट्स आर लाइन्ड विद स्टॉल्स ऑफ फूड, गेम्स एंड हैंडीक्राफ्ट्स. Locals and visitors indulge in special delicacies and shop till the early hours of the morning. Walking through the crowded, busy streets in this festive environment is one of the main charms of the Hornbill Festival. तो क्या होता है, स्ट्रीट्स आर लाइंड मीन्स स्ट्रीट्स में लाइंस लगी होती हैं, स्टॉल्स एक लाइन में लगी होती हैं
फूड की, गेम्स की एंड हैंडीक्राफ्ट्स की। लोकल पीपल भी और विजिटर्स जो बाहर से आते हैं, दे इंडल्ज इन स्पेशल डेलिकेसीज, दे एन्जॉय द स्पेशल डेलिकेसीज एंड शॉप मीन्स शॉपिंग करते हैं। कब तक? टिल द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग होने तक शॉपिंग करते रहते हैं। सो वॉकिंग थ्रू द क्राउडेड बिजी स्ट्रीट्स इन दिस फेस्टिव एनवायरनमेंट, फेस्टिव सा एनवायरनमेंट होता है, तो वहाँ से निकलना, वहाँ पे एंजॉय करना एक बहुत ही बड़ी अट्रैक्शन है। The Hornbill Festival is not just about the past, it also focuses on keeping up with the times. Keeping up with the times means कि वो जो मॉडर्न नागा कल्चर है उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं। इन रिसेंट ईयर्स इट हैज़ इंक्लूडेड फैशन शोज, फोटोग्राफी कंटेस्ट्स, कार रैलीज एंड मैराथन्स। In fact, the biggest rock music concert in India takes place at Kohima during the Hornbill Festival. जो सबसे बड़ा इंडिया का जो सबसे बड़ा रॉक म्यूजिक कॉन्सर्ट है वो भी कोहिमा में ही होता है ड्यूरिंग दिस हॉर्नबिल फेस्टिवल इटसेल्फ। नेशनल एंड इंटरनेशनल बैंड्स परफॉर्म टू लार्ज ऑडियंसेस एंड इट अट्रैक्ट्स यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द कंट्री। बहुत सारे बैंड्स आते हैं वहाँ पे, इंडियन भी और इंटरनेशनल भी। वो आते हैं वहाँ पे परफॉर्म करते हैं, बहुत ऑडियंस होती है और यंग पीपल जो थ्रू आउट द कंट्री, पूरे कंट्री में से जो यंग पीपल हैं, दे गेट अट्रैक्टेड फ्रॉम इट। The Hornbill Festival not only brings together the tribes of Nagaland but also connects the young and the old. It showcases the rich culture of the state as well as its promising future. It promotes music, dance, cuisine, and handicrafts and encourages tourism. तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है सिर्फ नागालैंड के ट्राइब्स को इकट्ठे करता, बल्कि यंग पीपल एंड ओल्ड सबको कनेक्ट करता है। इट शो केसेस द रिच कल्चर ऑफ द स्टेट। रिच जो स्टेट का, नागालैंड का जो रिच कल्चर है, इतना अच्छा कल्चर है, उसको शो करता है एंड इसके फ्यूचर को दिखाता है कि कितना ब्राइट फ्यूचर है। इट प्रमोट्स म्यूज़िक, डांस, क्विज़न एंड हैंडीक्राफ्ट्स, सब कुछ इनको सपोर्ट करता है और टूरिज़्म को भी एनकरेज करता है, बिकॉज पीपल आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट एंड they love to go to the Hornbill Festival in December. Also known as the Festival of Festivals, it is every bit as colorful and striking as the bird after which it is named. तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स एंड बहुत ही कलरफुल है और बिल्कुल बर्ड के तरह ही है। कौन से बर्ड की तरह? हॉर्नबिल की तरह, जिसके ऊपर इसका नेम रखा गया है। तो बेटा, व्हाट यू विल डू नाउ, you will read this chapter again and then underline the difficult words and take a dictation test of yourself. Okay, thank you.